So the big movement is here. I'm back again with yet another important topic that is the hot topic of the country, of the world, I would say. तो क्या है ये टॉपिक और किस बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं? आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि रातों रात लगभग 12 लाख लोगों ने अपने आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बदल दिया है। तो कौन है ये लोग? ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को स्क्रैच से बनाने के लिए हेल्प किया। अगर वो लोग नहीं होते, ना ये देश चल पाता, ना हम बैठ पाते, ना आज मैं आपसे बात कर पाती। तो कौन है ये लोग? ये लोग वो लोग हैं जो शायद अपने घर के बारे में कम सोचते हैं और औरों के बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और उनको अपने बच्चे पहला समझते हैं। ये लोग वो लोग हैं जहां आज अगर हम बाहर 10 मिनट के लिए अपना बच्चे छोड़े तो डर जाते हैं कि विल माय किड बी सेफ, बट जब इनके पास छोड़ते हैं तो निश्चिंत होकर छोड़ते हैं कि माय किड इज सेफ। तो कौन है ये लोग? यस, दिस आर our backbone, without whom our country will certainly cannot achieve what they want to achieve. We cannot produce good kids, we cannot produce good citizens, we cannot produce good scientists, good businessmen, nothing. So who are they? Yes, you guessed it correctly. They are our very own respected teachers. जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, रातों रात 12 लाख टीचर्स ने, उसमें से मैं थोड़े बहुत छोड़ भी दूं तो almost about 8 lakhs of them completely shifted their zone from teaching offline to online, which is a huge deal, without any training, nothing. This is a big debate today coming out, that is online versus offline teaching. We have some very talented, very accomplished teachers with us today. I want to welcome all of you to the debate along with the very respected teachers. So here they goes. Thank you to all of you. We have Monica ma'am, we have Shraddha ma'am, and we have 3 other beautiful teachers, and now they will be going to introduce themselves. I will be starting with this beautiful lady with extremely accomplished career. Yes ma'am, please. Yes, hello, my name is Sanchita, and right now actually I'm in a dilemma because before some days I have already resigned from my school and I have to join my school, but because of this coronavirus, I have to extend my joining, and this is for me. So ma'am, I'll come back to you. So we will be going to this lady over there, a young teacher, and what is her perspective? What's your name, ma'am? Hi, I'm Gurpreet Kaur Bhatia. I live in Indore, and it has been around 7 years working as a teacher. I worked as a corporate trainer as well, and I just feel that it's just a blessing on me that I become a teacher and I have that quality that I can train someone or I can teach someone. So thank you for making me teacher kids, and I just really want to say good things to all the teachers that yes, they have taken participation, and thanks to you, Anupama ma'am, that you provide us this opportunity to come on this forum and speak on it. Thank you so much. Thank you, Gurpreet ma'am. So this is our 3rd teacher today. Yes. So good evening, all of you. My name is Muskan Valwani, and I'm a founder of Stay Engaged with EduCreate. And my teaching experience is for 7 years in schools and as well in Stay Engaged with EduCreate. And thank you so much, Anupama ma'am, for giving this opportunity. That first time I'm live on YouTube. Thank you so much, ma'am. Wow, that's great. That's great. Awesome. Now, our 4th teacher. Hi, myself Shraddha Parkar, and I am a dance teacher and a choreographer. I am working from last 12 years. Thank you. And thank you, Anupama ma'am. You're most welcome, Shraddha ma'am. So our 5th, last but not the least.
Hi friends, myself Monica Khanna and I am a vice principal of Advanced Academy Preschool in Silicon City. And thank you Anupama ma'am जो आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है डिबेट के लिए. Thank you so much ma'am. You're most welcome. So teachers, let me just tell you the rules. The rules are you will be given 7 minutes each and आपको आपके कंटेंट आप किस बारे में बोलना चाहते हो आप वो उस वाले टॉपिक लोगे और there is an university professor from NEHU who has joined by now for our YouTube live session. So he will be judging you on the basis of your content and your popularity. Apart from that, there's a huge support from your students as well because you guys are extremely good with the kids. Now, the moment I said kids, I can actually see the smile in your faces, which is just exuberant. Okay. So the winner will be gifted a sari. The winner will be listed out into our website and the winner will also get our certificate signed and designed by our own code members. So, before even starting, I want to thank all of you for being a part of the system as a teacher and, helping the nation to build the teachers to build the students that we need for future. तो आप लोग भविष्य बना रहे हो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. We will start with Muskan ma'am. So Muskan ma'am, your time starts now. You can introduce and you can then go ahead. And the last 10 minutes will be for if you want to cut anyone's points, you can go ahead and cut. Yes, Muskan ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. So before moving for today's topic, our topic is online teaching versus offline teaching. So before moving for the topic, I want to say, yes, the educators are facing these challenges, but if we will not face these challenges in this time, so what about that? We are always stuck with the comfort zone. एंड जब भी हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम कभी भी कुछ सीख नहीं पाएंगे. कोई भी हम चैलेंजेस अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उससे आगे हम ग्रो होंगे और ग्रो होने के साथ डेवलप होंगे. And with this, nowadays, online teaching becomes a trend. Online teaching refers to courses that are delivered completely online. There are many benefits. There are many benefits of online teaching like flexibility. Flexibility means what? For both students and teachers, both flexibility means the cooperation. And the second thing is the plenty of choices. We can teach our students or share the things with the links like YouTube and Google. We can explain the students each and everything by the help of some online materials, online resources. And the third thing is comfortable environment of study. हमारा जो कंफर्टेबल हमारे जो कंफर्ट जोन है हम उसमें रहकर अपने स्टूडेंट्स को सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी आर सिटिंग एट आवर होम्स एंड वी आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग टू आवर स्टूडेंट्स एट आवर होम्स एंड दे आर आल्सो सिटिंग देयर इन देयर होम्स. So in my perspective, online teaching is very important in this pandemic, in this coronavirus, in this current situation. And the other thing is emergence of EdTech. What is emergence of EdTech? EdTech means the educational technology. And it is very important in today's scenario that Okay, she must be, the network got cut off. Yes, Muskan ma'am. Yeah. I'm here. So, yes, with the evolving of EdTech, the educational technology space, we're getting new apps like Zoom, GoToMeeting, Google Meet, and Adobe Connect. These are some apps and are coming up for learning on go. This will be highly beneficial for teachers as well as students. This explains the concept any time and any hour of the day. हम किसी भी टाइम दिन के किसी भी घंटे में या किसी भी आवर में हम अपने बच्चों को अपने किड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं सारी चीजें घर पर बैठकर.
And the third thing is, if we are opting for e-teaching or e-learning, or we are having options to teach, or students having option to study a classroom where the time slots are fixed. Like if we are going for a traditional teaching, in traditional teaching, what we were used to wake up at 5 or 6 a.m. and we are going to ready, and after getting ready we are reached at our bus stops, and after bus will reach us in the schools, and the timetable is given by the management, and we are taking lectures, and at the time like 7:30 to 2:30 we are in the schools. And what about the traveling times? These things are taking so much of time, and in online teaching this time is not consuming. टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी. यहाँ पर हम दिन में किसी भी टाइम में बच्चों के साथ बैठकर उन्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारी चीजें समझा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स जो भी हैं हम उन्हें सारी चीजें ऑनलाइन के थ्रू. हम ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉप्स हमें स्कूल में ही मिलते हैं, हम अपने खुद से भी कुछ एड्स बना सकते हैं, प्रॉप्स बना सकते हैं और बच्चों को शेयर कर सकते हैं. Now, fourth point is, while we are teaching online, we save all the documents, and when we are teaching online, like document contents, PDF, PPTs, and worksheets, question answers, etc. We are saving that documents in our Google Drive. And by this, students don't have to compile notes or write notes. They are having their soft copies. And remember one thing, schools are not closed. Schools are not closed. Teachers are teaching, but school buildings are closed only. Yes. Now my last point is personalizes attention. The student and the engagement of the student and teacher is like online teaching increases the engagement of student and teacher. For an example, if a student is very shy, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा shy है तो वो हमें directly communicate कर सकता है, direct अपनी query हमसे communicate करके बता सकता है. And like for an example, I am sharing with you my real life example. Like मैं जब बहुत स्कूल टाइम्स में थी तब मेरे साथ ये हुआ था कि मैं चाह रही थी कि मैं जब टीचर एक्सप्लेन कर रही थी मुझे, तो मैं चाह रही थी कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं. बट एक बार क्या हुआ था कि मेरी एक कलीग थी, मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया था. शी वाज एन एवरेज स्टूडेंट एंड शी रेज्ड अ क्वेश्चन एंड the whole class were laughing at her. So it was an inner fear. मेरे अंदर एक inner fear आ गया कि अगर मैंने question raise किया तो पूरी क्लास मुझ पर भी हंसेगी. So by the help of online teaching में जो students हैं हमसे directly connect हो सकते हैं, directly communicate कर सकते हैं हमारे साथ. So online teaching is more better than offline teaching. इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, हम डायरेक्टली बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं. Okay, ma'am. We will get back to you when you can cut the points, okay? So, sure, ma'am. I will come up to Sanchika ma'am now. So, Sanchika ma'am. Hello. Am I audible to everyone? Yes. You are. Okay. Ma'am, actually, I would say that I'm totally agree with the offline teaching for school perspective, because online teaching is good if you are giving lecture on a specific subject or a specific topic. But on the behalf of school teaching, so I think your behavior is very important, because if you are teaching in a school, you have all the class, you have 30 students. तो उस टाइम पर आप हर एक बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सा बच्चा कैसा है. ओनली टीचिंग इज नॉट द थिंग फॉर द स्कूल, फॉर द टीचिंग ऑल्सो. बट मैं ये कहूंगी कि अगर टीचिंग की बात है तो उसमें हर एक चीज आती है. दैट इज नॉट ओनली फॉर द सब्जेक्टिव टीचिंग, दैट इज एवरीथिंग फॉर द टीचिंग. मीन्स हम एक एजुकेटेड पर्सन, दैट इज नॉट एजुकेटेड पर्सन इज नॉट दैट हु हैज सो मेनी डिग्रीज, I think, but educated person is that one who has that mental power. और वो हमारा तब तक नहीं आ सकता जब तक हम अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट ना हो.
और ऑनलाइन टीचिंग एक ऐसी चीज है कि जो हम सिर्फ अपने घर पे रह के उस चीज को बोल सकते हैं दैट आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम रीडिंग समथिंग। और अगर टीचिंग की बात करें तो फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक के बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो उस जगह पर हम ये बोल सकते हैं कि टीचिंग सिर्फ एक क्लास के बच्चे के लिए नहीं है, वहाँ पे फर्स्ट क्लास का बच्चा भी है जिसे मतलब एक सराउंडिंग्स की बहुत जरूरत है, सेकंड क्लास का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा है, तो सराउंडिंग्स की बहुत जरूरत है जो विदाउट मतलब एक स्कूल की नहीं हो सकता। आप जब तक कनेक्ट नहीं करोगे बच्चों से, आप एक बिहेवियर को कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस मेंटल लेवल की ग्रोथ को नहीं ले सकते हो, इन माय ओपिनियन। And for teaching, online teaching is good. That is really good because that is in the trend right now. And we can say that online teaching is only good for those subjects, as we can say that when we are preparing for something. And that time I can say that online teaching is good. But if for the school teaching, that is completely, I'm not agree. I'm not getting agree for that because the online teaching is literally means आई कैन से दैट ये तो एक तरीके से वो चीज होगी, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि ऑनलाइन टीचिंग एक ऐसी चीज है जो आप सिर्फ एक रूम के अंदर बंद होके आप अपने आसपास की चीजें बस सुन रहे हो, आपको कोई दूसरा एक कुछ भी सुना रहा है, आप एक सुन रहे हो, बट आपकी सराउंडिंग्स उसके आसपास वैसी नहीं है जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। सो दैट इज फॉर माई पॉइंट फॉर ऑनलाइन टीचिंग। एंड ऑफलाइन टीचिंग इज मतलब अगर हम कह सकते हैं कि अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है एंड आफ्टर 2 or 3 months स्कूल स्टार्ट होंगे एंड दैट विल बी वेरी टफ पीरियड फॉर द मीन्स फॉर द स्कूल टीचर्स, फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज उस टाइम की क्या गाइडलाइंस होंगी, कैसे हम चीजें कनेक्ट करेंगे, तो वो एक बहुत ही टफ पीरियड होगा हमारे लिए आई थिंक, और बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग पीरियड भी होगा कि हम उस चीज को कैसे फेस करेंगे। And online teaching, I think, just for example, if we are preparing for government exams, if we are preparing for something other thing, we are preparing for speaking fluent English. So that time, those videos are very good for you. Those videos are very helpful for you because you can study anywhere, because that is the flexibility in online teaching. ऑनलाइन टीचिंग में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कहीं भी जाके किसी भी टाइम पर आपको पूरी एक मतलब फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हो। बट अगर मैं ऑफलाइन टीचिंग की बात करूं, स्कूल जो है वो एक डिसिप्लिन आपको सिखाता है, एक मतलब डिसिप्लिन लर्न करवाता है कि बच्चे सुबह भले ही 6 बजे उठते हैं बट वो एक डिसिप्लिन उनका बचपन से ग्रो होता है। और अगर वो घर पे ही रह के सारी चीजें अगर वो पढ़ते हैं तो आई थिंक वो डिसिप्लिन का जो पॉइंट है वो कहीं उनका डिसमिस होगा, क्योंकि घर पे जो पेरेंट्स हैं, कई टीचर ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए बिकॉज आई एम नॉट गॉट गुड फॉर माई चिल्ड्रन, क्योंकि वो उन्हें हैंडल नहीं कर सकते हैं। So this is the so in my opinion, मतलब offline teaching is not good for schooling. Offline teaching is good for schooling and all, and online teaching is only good for specific subjects, specific topics, or specific another thing which you can combine in 1 hour or 2 hours. Like which specific topics? मैम स्पेसिफिक टॉपिक्स काफी सारे होते हैं, देयर आर सो मेनी स्पेसिफिक टॉपिक्स। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम गवर्नमेंट की प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अगर हम स्कूल में भी हैं, अगर हम वी आर टीचिंग फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, इंग्लिश, तो हम एक स्पेसिफिक टॉपिक लेते हैं किसी भी चीज को कि हाउ टू डू एडिशन फॉर क्लास फर्स्ट, how to do a subtraction, how to do make something else। तो उन सब चीजों के एक स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं कि एक इंग्लिश की भी अगर हम बात करें तो बहुत से उसमें टॉपिक्स रहते हैं जो सब्जेक्टिव टॉपिक होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में बाउंड करके आप उनको कवर कर सकते हो और किसी भी टाइम पे भी पढ़ सकते हो। वो आपके रिवीजन के लिए, दैट इज गुड फॉर द रिवीजन, कि आप कितनी भी बार उनको देख सकते हो, कितनी भी बार समझ सकते हो। बट we can't connect for the surroundings, we can't connect to the people that time। और अगर हम एक बच्चे की ग्रोथ की बात करें तो जो मेंटल ग्रोथ है वो विदाउट सराउंडिंग्स यू कांट ग्रो ऑन दैट लेवल आई थिंक। तो अगर आपको स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको हर तरीके के बच्चे मिलते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो एवरेज भी होते हैं,
जो कम थोड़ा एवरेज से भी कम होते हैं, तो आप उन सब के साथ हमें कैसे डील करना है। कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो आप घर बैठ के नहीं सीख सकते हो। उस चीज को सीखने के लिए उन सारी सराउंडिंग्स की आपको जरूरत है, और उन सराउंडिंग्स के बिना आप एक बेटर पर्सन नहीं बन सकते। एंड एजुकेशन इज नॉट दैट द फर्स्ट स्टार्टिंग, I will say that time that education is not for gaining degrees. Education is that level which you can deal with every person, which you can deal with ourselves also. So that is called educated person who can identify which is wrong and which is right. And जब तक आप उस चीजों को फेस नहीं करोगे, we will come back to you. Yeah. We will definitely come back to you. I'll come back to Monica ma'am now. Monica ma'am, your time starts now. Yes ma'am. मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि अभी मुस्कान मैम और संचिता मैम ने बताया ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, आई एग्री विद बोथ ऑफ यू, बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट इन दिस पीरियड एज अ कोविड-19 एंड कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन इज द बेस्ट, बिकॉज हम हर एक छोटे बच्चे को ये नहीं बता सकते कि बेटा सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। अगर बच्चा स्कूल जाता है अभी इस पीरियड में, तो बच्चा, हम कितने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा ये सोशल डिस्टेंसिंग में आपको हाथ धोना है, आपको ये यूज करना है, ये नहीं। बच्चे छोटे, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें हर एक चीज नहीं समझा सकते। बड़े बच्चों को अभी जैसे कि जस्ट लाइक मैंने अभी देखा IPS स्कूल एमरल्ड हाइट्स में डेट दी गई थी कि 20 जुलाई के अप्रॉक्स हम लोग स्कूल ऑन करने वाले हैं, बट जैसा कि अभी कोरोना वायरस आ गया है और अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि अभी हम स्कूल ऑन नहीं कर सकते, 15 जुलाई के बाद तो कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जब तक चल रही है, बच्चे उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घर में ही हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जूम ऐप पे प्रॉपर बैठ रहे हैं, क्लासेस 40 मिनट्स की चलती है, बच्चा उस बीच में बैठता है। हाँ, हालांकि थोड़ा सी प्रॉब्लम, कई बार नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, कई बार वीडियो पॉज हो जाता है, कई बार बच्चे थोड़े ट्रबल हो जाते हैं कि उन्हें नहीं समझ में आता, और छोटे बच्चों को हार्डली अटैच्ड होते हैं वो टीचर्स के फेस से। जब तक वो टीचर का फेस देखते नहीं है तब तक उन्हें हालांकि कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी बच्चे जब टीचर को उन्हें पता चलता है कि हमारी स्टडी स्टार्ट हो गई है और वो जब बैठते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग काफी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, लाइक PDF फाइल्स हो गई, कुछ एक्टिविटीज हो गई, छोटी छोटी एक्टिविटीज भी हम बच्चों को बताते हैं। एक पर्सनल पॉइंट मेरा ये है कि जैसे कि मेरे पास एक बच्चा आ रहा था पढ़ने के लिए, उसकी मम्मा का ये कंप्लेंट था कि मेरा बच्चा घर में बहुत मस्ती करता है, लेकिन मैम का ये कहना था कि वो स्कूल में ना के बराबर रिस्पॉन्ड करता है। अब उसकी मम्मा जब उसके घर से उसको स्कूल के अभी ऑनलाइन क्लासेस से जो एक्टिविटीज दी जा रही है, वो घर पे बिना शाय फील किए हुए, उसे ना तो किसी चीज का डर है, ना तो उसे ये है कि मुझ पर कोई हंसेगा, ना तो उसे ये लगता है कि मुझे मैम डांटेगी। वो घर पे सारी एक्टिविटीज कर रहा है अपनी मम्मा के साथ रहकर। बच्चों का पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, पेरेंट्स प्रॉपरली ध्यान दे पा रहे हैं बच्चों पर, पेरेंट्स खुद भी कुछ लर्न कर रहे हैं। उन्हें अगर कोई स्पेसिफिकली टॉपिक दिया जा रहा है बच्चे का तो पेरेंट्स उन्हें हेल्प कर रहे हैं। अभी तक ये हो रहा था कि पेरेंट्स ने बच्चे को स्कूल भेजा, उसके बाद वो घर आया, उसे लंच कराया गया, देन उसे ट्यूशन भेज दिया गया। पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था बच्चे के साथ। लेकिन नाउ एट अ डेज प्रेजेंटली पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं। और बच्चों को इतना ज्यादा सिखाने में मतलब उनकी भी खुद की भी कुछ जैसे कि हम कहते हैं ना, मदर जो होती है वो फर्स्ट टीचर होती है, देन सेकंड होती है जो उसकी मदर, वो टीचर होती है। लेकिन अभी एट प्रेजेंटली ये शो हो रहा है कि जो मदर है वो अपने बच्चे को भरपूर टाइम देकर उसे सब कुछ चीजें सिखा रही है। तो मेरे हिसाब से अभी एट प्रेजेंटली टाइम्स कहा जाए तो ऑनलाइन टीचिंग इज द बेस्ट। एंड आगे भी मैं यही कहूंगी कि बच्चों को जैसे कुछ भी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स होता है तो बच्चे गूगल्स हुआ, यूट्यूब हुआ, उसकी हेल्प लेकर बच्चे पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक उन्हें टॉपिक दिया जाए वो सर्च कर उसे देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और शांति से सुन सकते हैं। कई बार बहुत सारी नॉइज होती है, बच्चा इतना परेशान हो जाता है साउंड्स वगैरह में कि वो नहीं कर पाता है। लेकिन अभी प्रेजेंटली उसका माइंडसेट एक जगह सेट होता है और वो पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर, हम ये कह सकते हैं, पर्टिकुलरली उस पर ध्यान देकर बहुत अच्छे से सुनता है ताकि उसके माइंड में वो चीज अच्छे से जाए। आजकल होता यही है, स्कूलों में बच्चे को सिखाया, उसे नहीं समझ में आया, दोबारा पेरेंट टीचर पूछता भी नहीं है कि तुम्हें समझ में आया या नहीं, और बच्चा वैसे भी डर के कारण टीचर को बताता नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा ये कर सकता है कि उसी चीज को वो 2 से 3 बार सुन सकता है,
समझ सकता है, जब तक उसे समझ में ना आए तब तक वो उसे सुन सकता है। तो मेरे हिसाब से मैम अभी ऑनलाइन टीचिंग इज द बेस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक्स। आई हैव सम क्वेश्चंस मैं लास्ट में पूछूंगी। ओके, गुरप्रीत मैम, इट्स योर टर्न नाउ। Let's start. Yes. Okay. Yeah. So I've listened all of them, and it was nice. I agree with lots of points, and I do disagree with lots of points. And I would start with a quote that students who take online classes must be motivated, independent learners. Now, my dear friends, independent. India is an independent country, but our children are. मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पे कोई पे भी जो इतने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। एग्जैक्टली। तो आत्मनिर्भरता कहाँ से आती है? बच्चों को आप बेबी सीटर बना के हमेशा रखोगे और उसको हमेशा स्पून फीडिंग करते रहोगे कि बेटा you are not supposed to write by your own. Oh, I am going to hold your hand and you are going to write then. So which is we are making our students like we are doing spoon feeding. अरे आत्मनिर्भर बनाओ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ। अब बच्चा आत्मनिर्भर कहाँ से बनता है? एक वो अपने घर से बनता है, जब उसको मम्मा बोलती है कि बेटा जाके ग्लास उठा के लेके आओ, तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, I should go and take it. Now I listened 3 of them and I came to the conclusion people always talk about yes offline learning, कोई बच्चा चाहिए घर पे, हम बच्चा नहीं संभाल सकते हैं, हम प्लीज टीचर आप ही हैंडल करो। मुझसे तो बिल्कुल नहीं समझता है, बिल्कुल नहीं संभल सकता है मेरे से, मैं तो हूँ ही नहीं इस लायक। काइंड ऑफ पेरेंट्स ऐसे आते। तो आज यहाँ समझाने वाली बात है, हम हमेशा बात करते हैं उन पेरेंट्स की जो बहुत रिच प्रोफाइल के हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने भी उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं। But there are people, there are states, there are villages in our country. We have to think about that also. हमें थोड़ा सा खुद को zoom out करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा being a teacher उस सेक्शन पे सोसाइटी के कि जिनको पढ़ने को नहीं मिल रहा है। अगर I'll go for online teaching, क्यों जाऊंगी मैं ऑनलाइन टीचिंग पे? मैं इसका रीजन आपको बताऊंगी with the data. Now I have data with me. Around 13,000 villages are there जिनके पास स्कूल नहीं है, जहाँ पे स्कूल ही नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसे 13,000 स्कूल हैं जहाँ पे स्कूल ही नहीं है। और हमारे इंडिया में ही एक ऐसी स्टेट है दैट इज मिजोरम, जिसके सारे विलेजेस में स्कूल है। सिर्फ एक ही ऐसी स्टेट है जहाँ पे स्कूल्स हैं हर एक विलेज में। लेट मी टेल यू गाइस, सिर्फ एक स्टेट में बहुत सारे स्कूल होने से कुछ नहीं हो जाएगा। हमें पूरे इंडिया को अगर हमारे चाहते हैं कि हमारी साक्षरता का दैट इज लिटरेसी, उसका अगर रेट हमें सच में बढ़ाना है ना, तो हमें ये जो हमारी टीचिंग की जो स्किल है, हमारा टीचर्स का जो स्किल है, हमारी जो टीचिंग है, वो हमें वहां तक भी पहुंचानी पड़ेगी। मेरे गली के बच्चों को मैं पढ़ा लूंगी, बट अगर मुझे सच में वहां लद्दाख के उन बच्चों को जाके पढ़ाना है जिनके पास स्कूल नहीं है, तो आई विल प्रेफर ऑनलाइन टीचिंग ओनली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर किसी की ऐसी सोच है कि ऑनलाइन टीचिंग इज मोर कॉस्टली, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने आपके बड़े बड़े स्कूल्स में रिच बच्चों को देखा होगा, मस्त शूज मस्त पैंट पहन के आते हैं, एकदम बिल्कुल कूल टाइप होते हैं बच्चे, एकदम इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। पता है आपको कि वहां पे बैठा हुआ एक स्टूडेंट सरकारी स्कूल में, मैंने उससे पूछा कि हैव यू एवर एट कीवी? उसने बोला कीवी क्या होता है? मैडम मैंने तो देखा भी नहीं कभी कीवी। क्यों नहीं देखा? टीचर ने एप्पल तो बताया, ए फॉर एप्पल है, पर टीचर ने कभी कीवी नहीं दिखाया। मैडम क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि टीचर खुद भी नहीं बता सकता था। एक पोस्टर से टीचर, एक बुकिश नॉलेज से टीचर उसको एक टाइम पर कीवी का फोटो नहीं दिखा सकता। बट अगर मैं किसी को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको बकायदा मेरे फ्रेम पर, मेरे स्क्रीन पर कीवी कैसा दिखता है, उसके अंदर कितने बीज होते हैं, मैं सब दिखा सकती हूँ। So my dear friends, we need to understand, we need to zoom out our thinking. Now, आपने कभी सोचा था कि हमारे आसपास के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो कभी पेटीएम से स्कैन करके क्या बोलते हैं पैसे लेंगे? ठेले वाले नहीं सोचा था हमने कभी। Now my dear friends, हमें हमारे स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा।
अब वो इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? अगर हम ये सोचे कि बच्चों को नहीं आता, उनको स्पून फीडिंग की नीड है, तो वो हमेशा स्पून फीडिंग ही करेंगे। मैं मेरा एग्जांपल दे सकती हूँ। जब मैं पहली बार किसी कंपनी में काम करने गई थी ना, तो मैंने जब कीबोर्ड पे फर्स्ट टाइम हाथ रखा था ना, तो मेरा हाथ कांप रहा था। रीजन बिहाइंड, मेरे स्कूल पे मैंने वहां पे कभी मेरे स्कूल में मुझे कंप्यूटर पे नहीं बिठाया। आई वॉज नॉट in that good school, to be very honest. But मेरा हाथ शेक कर रहा था. My trainer was like, what happened, Gurpreet? You are such a fluent student and you are not able to keep your hands on the system, keyboard. मेरे हैंड शेक कर रहे थे. अगर बच्चों को सच में प्रैक्टिस करवानी है ना, we have to go online teaching. Online teaching is the way. Fourth point I would like to add on in this, कि अगर कॉस्ट की बात करते हैं, मैं I'll go for government student, जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, जो म्युनिसिपल स्कूल में जाते हैं. वहां पे हर साल बच्चों को गवर्नमेंट जो है बुक्स प्रोवाइड करवाती है, एंड बुक इज अनलिमिटेड नॉलेज. बट इफ यू गो फॉर ऑनलाइन टीचिंग, इफ यू विल प्रोवाइड tab to them, if you will provide a smartphone to them, and government, I will appreciate if government will provide a net back to them and they will go online, और वो कीवी की पिक्चर देख लेंगे ना, सच में मेरा जीवन सफल हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जो जिस पे हमें जूम आउट करना पड़ेगा. हमें हमारी सोसाइटी को अगर अपग्रेड करना है तो हमें ऑनलाइन टीचिंग को की तरफ जाना चाहिए. ट्रेडिशनल टीचिंग बहुत हो गई, लेट्स गो फॉर ऑनलाइन टीचिंग. आई जस्ट विश दैट कि हम आगे जाके जो ये ऑफलाइन टीचिंग जैसा सब भूल जाएंगे. हाँ, अभी किसी एक टीचर ने शायद डिसिप्लिन की बात करी थी, तो माय डियर फ्रेंड्स, डिसिप्लिन की मैं बारे में बात बता दूं. जब एक कोई सेशन टीचर डिसाइड करता है ना कि बेटा 6 बजे सेशन होगा, बच्चे सब आते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिसिप्लिन, कि वो 6 बजे आएंगे ही आएंगे. अगर वो नहीं आएंगे, दे विल मिस आउट देयर सेशन एंड देयर विल बी अप्स एंड मार्क्स. 75% ऑफ अटेंडेंस कहाँ से आएगी उनके पास? तो टीचर्स, अगर बच्चों के पास एक फोर्स होगा, उनको सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी. वो ये नहीं बोलेंगे कि यार मम्मा आज स्कूल नहीं जाना है. वो अपने कंफर्ट जोन में बैठेंगे एंड दे विल लर्न. दे विल हैव टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. वो टाइम भी बचाएंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट वो वहां से सीखेंगे कि आज मैंने तो खूब पढ़ाई कर ली, आज जाके तो मैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूंगा, मैं सोशल भी हो सकता हूँ. स्कूल में जाने से माय डियर फ्रेंड्स सोशल नहीं होता है कोई, सोशल वो खुद से होता है. Thank you, Gurpreet ma'am. Thank you so much. It was indeed a very, very entertaining and enlightening session for sure. Shraddha ma'am, it's your turn now. Yes. Hi friends. मैंने चारों टीचर्स की बातें सुनी और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि काफी चीजें बहुत नई जानने को भी मिली हैं, और ऑनलाइन के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ. आज के दौर में ऑनलाइन बहुत जरूरी है, बट मैं ऑफलाइन का भी सपोर्ट करती हूँ. बहुत से कारण है कि ऑफलाइन जो स्कूल होता है वो कितना जरूरी है. सबसे पहला फ्रेंड्स. स्कूल ही है जो हमें फ्रेंड दिलाता है. स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आजीवन होते हैं, आपके भी अभी तक होंगे. पर जो ऑनलाइन के फ्रेंड्स बनते हैं ना, उनका हम भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमारी कितनी हेल्प करेंगे. सेकंड पॉइंट है डिसिप्लिन, जो संचिका ने भी बोला. और डिसिप्लिन का मैं ये बोल दूं कि ना, जो मेरे से पहले जिन टीचर ने बोला कि डिसिप्लिन सिर्फ टाइम नहीं होता है. डिसिप्लिन होता है कि बच्चों को सही यूनिफॉर्म में आना, सही तरीके से अपने आप को ग्रूम करना, सही तरीके से वहां पर बातें करना, सही आचार विचार जो भी है उनके सही तरीके से पैमाने पर आने चाहिए. डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता है, ये बात मैं बोल दूं. तीसरी बात है शेयरिंग. स्कूल जो शेयरिंग करना सिखाता है ना, वो हम ऑनलाइन में नहीं सिखा सकते. स्कूल में बच्चा शेयर करता है अपना टिफिन, शेयर करता है अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें जो हमसे नहीं करेगा, ना किसी टीचर से करता है. किसी टीचर से करता है, आई एग्री, मेरे से भी करते हैं बच्चे, बट हर टीचर से नहीं करता है, और शेयर करना सीखता है. सबसे बड़ी बात जो हम स्कूल में सबसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं वो है शेयर करना. इसके बाद जो मेरा है सोशल लाइफ. बच्चे की सोशल लाइफ और सोसाइटी स्कूल सिखाता है कि उसको अलग अलग पर्सन से कैसे हैंडल करना है. भाई उसके पास 50 दोस्त हैं, कितनी टाइप्स की टीचर्स हैं, वो हर टीचर से, हर सब्जेक्ट टीचर से अलग अलग तरीके से बात करता है. इवन प्रिंसिपल से अलग बात करता है और अपने दोस्तों से अलग बात करता है, और इस तरीके से उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है. इससे वो हर चीज को कैसे टैकल करना है वो ये समझ सकता है. इसके बाद जो है मेरा पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, वो है इक्वालिटी. बच्चों के पास इक्वालिटी है, वहां पर बच्चे का सबका यूनिफॉर्म सेम होता है, जिसके कारण हम जाति और धर्म का जो भेदभाव है वो बच्चे को नहीं सिखाते.
ऑनलाइन में आप ये गारंटी नहीं दे सकते हो कि बच्चे को आप ये चीज सिखा पाओ, क्योंकि आपके घर में जो चीजें बच्चा देख रहा है ना वो उसी को समझेगा। स्कूल में जाएगा तो स्कूल में जब वो सबको देखता है कि सब एक तरीके से ही हैं, तो फिर वो चीजें उसके ऊपर नहीं आती। फिर है संस्कार। स्कूल से हमें संस्कार भी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि काफी पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है कि बच्चा बहुत शैतान है ना, वो टीचर के पास आता है पेरेंट्स मीटिंग में कि मैडम ये आपका बच्चा है, आप समझा लो, इसलिए हमारी बातें नहीं समझता है। क्योंकि जो संस्कार हम देते हैं, जो हम बताते हैं, वो पेरेंट्स भी बताते हैं, पर बच्चा टीचर की पहले सुनता है। ये है। इसके बाद जो मेरा पॉइंट है वो जो मैं बोलना चाहूंगी वो है कि ऑनलाइन में जो नहीं ऑफलाइन में स्कूल में एक्टिविटीज होती है, मेनली स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डांस एक्टिविटी। डांस एक्टिविटी चलो हम मान सकते हैं कि जूम के थ्रू सीख सकता है, बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होती है, जो पीरियड लगता है, उससे बच्चे की जो फिटनेस, कंपलसरी जो फिटनेस होती है, वो घर में बैठ के नहीं होती है। बच्चा कितना भी जूम वीडियोस देख के डांस कर ले, ये कर ले, पर स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा तो उसका कैसे चलेगा, उसका काम कैसे होगा, उसकी बॉडी फिट कैसे होगी। और इसके अलावा तो काफी मेरे पास है। अगर मैं ऑनलाइन के बारे में भी अगर बोल सकती हूँ, ऑनलाइन में मेरे पास सबसे बड़ा टॉपिक है कि ना, अगर ऑनलाइन टीचर्स हैं तो उनके पास पेरेंट्स की ये कंप्लेंट नहीं आएगी कि ना आपने मेरे बच्चे को मारा। किसी भी कारण से टीचर नहीं मारती है, मैं बोलती ही नहीं हूँ कि टीचर मारती है। टीचर के कारण के सामने ऐसी काफी चीजें बन जाती है, ऐसा पूरा माहौल बन जाता है कि उसका हाथ उठ जाता है। पर ये जो बात हो गई है कि ना टीचर्स को मारा, ये वाली पॉइंट तो उठा ही नहीं पाएंगे। पेरेंट्स बोली सारे टीचर्स हंस रहे हैं इस पॉइंट पे, हंसने वाली बात है। दूसरा है कि ना, अगर बच्चा, जैसे संचिका ने बोला और मुस्कान ने भी बोला कि उनको स्टडी मटेरियल ऑनलाइन के थ्रू काफी जगह से मिलता है, और उसके कारण उनका जो लेवल है, नॉलेज लेवल, वो भी बढ़ जाता है। तो उससे एक चीज होती है कि वो बुकिश लैंग्वेज लिखना भूल जाएंगे और वो अपनी खुद की एक बनाई हुई भाषा लिखेंगे, जो ये ऑनलाइन के जरिए बहुत अच्छी बात है। बुक्स में क्या होता है, स्कूल में बुकिश लैंग्वेज ही चलती है, टीचर भी वैसे ही चेक करता है जैसे बच्चा लिखा हुआ है। उसने पहला एक रट्टू तोड़ने की कॉपी देख ली, किसने सही लिखा है, और दूसरा बच्चा थोड़ा अपने मन से लिखता है ना, उसके मार्क्स कट जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे बच्चे के साथ हुआ है। मेरे बच्चे को सिखाया गया था राम इज योर गुड फ्रेंड, उसने लिख दिया मुस्कान इज माय गुड फ्रेंड, तो उसके नंबर काट दिए। क्यों? क्योंकि राम नहीं लिखा था। ऐसी काफी चीजें हैं। सबसे पहले इनकम, हम ऑनलाइन में इनकम देखो तो इनकम का जरिया तो बहुत अच्छे से खुल गया है। टीचर यहाँ पर भी कमा सकता है, स्कूल में भी कमा सकता है, प्लस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में कमा सकता है। वो चाहे तो अपने आप को अच्छे से सर्कुलेट करे और सब जगह से लेके आए। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। बिकॉज आप अपने फोन को भी अपग्रेड करते हो ना, फोन जैसी छोटी चीज को अपग्रेड करते हो, तो एज अ टीचर अपना वर्जन्स अपग्रेड करो। आज अगर मैंने बार बार ये चीज बोली, मैंने अपनी शुरुआत 5,000 रुपए से की, which is way less than what I was earning when I left the job. So the thing is, you have to constantly revive yourself. Then is the time that you can earn really lakhs and lakhs and lakhs. Yes, Shraddha. Yes. ऑनलाइन टीचिंग में एक है कि स्टडीज जो हम करते हैं, ठीक है, वो तो बढ़िया ही होती है, नो डाउट, बट टीचर को एक बेनिफिट है, कॉपी चेक नहीं करना है। आई थिंक सो कि अभी तक ये बेनिफिट है कि कॉपी चेक नहीं करना है, जो बहुत टाइम लेता है टीचर का, बहुत ज्यादा टाइम। बेचारे टीचर घर पे भी कॉपी चेक कर रहा है, स्कूल में भी कॉपी चेक कर रहा है, उसकी गलतियां निकाली जा रही है, फिर टीचर की कॉपी उसका सीनियर चेक करता है, फिर उसका सीनियर चेक करता है और टीचर को लाके खड़ा कर दिया जाता है कि आपने यहाँ पर गलत कैसे बोला, बच्चे ने सही बोला, या फिर बच्चे ने गलत किया था और आपने सही बोला। ये सारी चीजें रहती है। इसके अलावा ऑनलाइन का एक जो ड्रॉबैक जो मेरे घर में दिखता है, जो मेरी बेटी के साथ होता है, ये है कि ऑनलाइन में जब वो जाते हैं तो काफी बच्चे अपना नाम चेंज करके, वीडियो ऑफ करके कुछ भी बातें करते हैं और वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और इतने सारे बच्चों को ना टीचर संभाल नहीं पाती वहां पर। और स्कूल में जब क्या होता है कि स्कूल में वो सारे बच्चों के ना एक एक बच्चे की नस नस को पहचानती कि किसने किया होगा। ऑनलाइन में ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो ज्यादातर
छोड़ दी। काफी बच्चे उससे डिस्टर्ब भी होते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं, पर बाद में जब बच्चे ने नाम ही चेंज कर रखा है तो पकड़ेंगे कैसे। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, काफी पॉइंट्स हो गए हैं, आई थिंक मैंने ही बहुत ज्यादा बोला है। नहीं बहुत नहीं, आपका एक्चुअली 1 मिनट बचा था, बट ठीक है। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये थी मैडम कि मेरे काफी पॉइंट हमारी 4 टीचर्स ने बोल दिए। शुक्र मनाओ मैंने आपको अकेली नहीं बुलाया। हाँ, नहीं तो मैं पकड़ लेती। ओके, यू हैव टू कट ईच अदर्स पॉइंट, बट बिफोर दैट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, आपने जो अभी श्रद्धा मैम पॉइंट बोली है कि बच्चे अलग अलग तरीके से बात करते हैं, रिमूव देम इमीडिएटली। Yes, definitely. I want to speak this line, ma'am, that हमारे पास कुछ options रहते हैं कि हम म्यूट कर सकते हैं उतने टाइम के लिए। हाँ, बट yes, I agree, मुस्कान मैम। Yes, I agree, मुस्कान मैम, क्योंकि Zoom ऐप पे म्यूट और अनम्यूट के ऑप्शंस होते हैं। हम चाहे तो बच्चों को म्यूट और अनम्यूट जो होस्ट होता है उसके हाथ में होता है। हाँ, बट मैंने जो प्रॉब्लम देखी है वो ये देखी है कि बच्चे कंप्लेंट करते रहते हैं लगातार टीचर को कि मैडम वो बच्चा हमें तंग कर रहा है, वो बच्चा बार बार ऐसे बोल रहा है। बच्चों ने उसकी आवाज को रिकॉर्ड करके टीचर के पास भेजा है कि मैडम उसको निकाल दो क्लास में। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, एक्चुअली जब हम लोग भी वेबिनार्स देख रहे थे तो कुछ फैकल्टी, नॉट स्टूडेंट्स ओनली, कुछ फैकल्टीज भी ऐसे थे जो बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। तो उन लोगों को भी क्या किया गया, डायरेक्टली म्यूट कर दिया गया और चैट बॉक्स पे बस बोला कि हाँ जो लिखना है लिखो चैट बॉक्स पे। जो लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं समझना सीखना चीजों को, वो पूरा सिंसियरली उन चीजों को ध्यान देते हैं। और जो बच्चे जो बैक बेंचर्स रहते हैं जो सीखना चाहते ही नहीं है, तो वी कांट डू एनीथिंग फॉर देम। नहीं, आई एम टोटली एग्री विद योर पॉइंट। वो तो इग्नोर वाला है। मैंने तो रीजन एक प्रॉब्लम बताई है कि ऑनलाइन में एक ये प्रॉब्लम होती है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम बता रही हूँ कि ऐसे काफी टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम है जिनको ये समझ में नहीं आता कि आप करें क्या। तो वही तो बात है ना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन की डिबेट इसलिए हो रही है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स है हम लोग वो शेयर करें, तो वो छोटे बच्चों के साथ होता है। सॉरी टू इंटरप्ट ऑल ऑफ यू, श्रद्धा मैम बहुत ज्यादा हो गई है, वो ये चीजें सीखने में बड़ी उनको दिक्कत आ रही है और वो सीख रहे हैं कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। सॉरी टू इंटरप्ट श्रद्धा मैम, अगर एज यू सेड कि टीचर्स आर नॉट दैट स्किल्ड कि वो उन्हें टीचर्स को इशू आ रहा है, सो प्लीज नेवर फॉरगेट दैट कि टीचर्स आर लर्नर फर्स्ट। तो सबसे पहले अगर टीचर्स को कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं बता दूं कि इंडिया की जितनी भी, अगर दास मैम ने बताया कि 10 लाख प्लस टीचर्स वी हैव, सो दे ऑल आर नॉट टेक्निकली साउंड टीचर्स। सो अगर हमें हमारी टीचर्स को भी ऑलराउंडर बनाना है, स्किल्ड बनाना है, हमें खुद को भी स्किल्ड बनना है, तो हमें टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। सो अगर ये कोविड-19 के दौरान, अगर ये पेंडेमिक के दौरान ये आया है कि टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है जिन्होंने कभी लैपटॉप उठा के नहीं देखा है, तो आई थिंक दैट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लर्न। ये अपग्रेड होने का बहुत अच्छा टाइम है। मेरा ये कहना है कि अपग्रेड होने का टाइम है। अभी अनुपमा मैम ने खुद कहा कि अपने आप को अपग्रेड कीजिए, तो हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अनुपमा मैम ने जो कहा ना दैट सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, टाइम टू टाइम वी अपग्रेड आवर वर्जन्स, राइट? मोबाइल के वर्जन्स हम अपग्रेड करते हैं विद आवर रिस्पांसिबिलिटी। So why not this world? Why not our kids? Why not we? Why not our society? क्यों नहीं? हमें चीजों को अलग वे से सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। Yes, same thing I want to say, that online teaching is not a big issue, but some people are like creating issues because of this online teaching. So we are the educators, we are the nation builders, and we are the builders and creators of the other profession. I think exactly, I'm right. Ma'am, I do agree with you. And बार-बार बोला करो मुस्कान, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं है, at times हमें for granted ले लिया जाता है। अगर टीचर्स नहीं है तो बाकी कोई और प्रोफेशन बन ही नहीं सकती, सबसे पहली। Exactly. तो मैं इस पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी, सबसे पहले तो एक साइकोलॉजी बन चुकी है कि पहले नोट चलते थे तो हम नोट ही एक्सचेंज करेंगे, अब हमसे एप्लीकेशन यूज नहीं होगी, अब नोट हम नहीं दे सकते। तो बहुत स्ट्रगल किया लोगों ने, खुद को अपग्रेड किया। तो हमको साइकोलॉजी अगर चेंज करवानी है ना तो करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल बना देना, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर हाथ खड़े कर दिए होते लोगों को परेशान देखते हुए कि नहीं यार ये लोग तो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पा रहे अपने मोबाइल से,
तो बस आज अपन नोट ही एक्सचेंज कर रहे हो। आजकल एक मैम ने, अनुपमा मैम ने अभी कहा या किसी टीचर ने आई थिंक कहा था कि एक ठेले वाला या ऑटो रिक्शे वाला, हमने कभी सोचा था कि वो ऐसे पेमेंट करेगा, लेकिन वो कर रहा है ना। बस हमें मेहनत करने की जरूरत है, कोई चीज नहीं सीखने को मिलती है तो करो। वी नीड टू चेंज और सबसे बड़ी बात, मुझे आज हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमें मालूम पड़ा कि जूम मीटिंग ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, लेकिन जैसे कि लाइक प्ले और नर्सरी KG1 KG2 के जो बच्चे होते हैं वो जूम में नहीं बैठ पाते, तो उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला हम लोगों ने कि हम छोटे छोटे से कम 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के खुद से पर्सनल सॉफ्ट बोर्ड के सामने खड़े होकर वीडियोस बनाएंगे और वो वीडियोस उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब भी उनके पापा ऑफिस से घर आए तब भी वो, अगर मम्मा के पास मोबाइल नहीं है तो वो कभी भी किसी भी टाइम पे पापा उन्हें उनका मोबाइल दिखा के दिखा सकते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी मैम आज आई और तुम्हारी मैम ने तुम्हें ये सिखाया है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे बच्चों के लिए। और एक मैम ने यूनिफॉर्म के बारे में बोला था, आई गेस श्रद्धा मैम ने, आई गेस। ओके, सो श्रद्धा मैम, यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म की बात है ना, तो मैं आई कैन फोर्स माय स्टूडेंट्स कि भैया यूनिफॉर्म पहन के ना ऑनलाइन क्लासेस पे बैठो, तो दे विल लुक गुड ऑल्सो, देयर ऑल्सो। अगर डिसिप्लिन की बात है, यूनिफॉर्मिटी की बात है। सेकंड, आपने इक्वालिटी की बात करी थी, तो इक्वालिटी की बात कर दूं मैम, कि मैं कॉलोनी या फिर मेरे इंदौर की सिटी में सिर्फ नहीं देखना चाहती हूँ, मैं इक्वालिटी की बात करती हूँ वो कुछ ऐसे गांव की जहाँ पे बच्चों को टीचर्स नहीं मिल रही हैं, 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अगर आई एम अ टीचर हु प्रोवाइड ऑनलाइन टीचिंग, तो मैं उनको interrupting you. Actually, I just want to tell you one. Yes, please go ahead. Yes, some of the teachers and some of the educators have asked this question, that how to catch the interest of the student. If we are going for an online education, then how? So I want to deliver that thing, that how to catch the attention or the interest or the students' attention at the time of this online teaching, by the help of delivering of our words with the help of quality and the quality of sound with voice modulation. And if we are going in front of the students and if we are talking like this, good morning students, now today our topic is exactly, so they are like, they felt क्या पढ़ा रही हैं यार, हमको पढ़ना ही नहीं है. We have to be vibrant at that time. We have to be energetic at that time. As one trick, I remember the one trick of Anupama ma'am. She has taken that trick in her session. Remember that अगर आपका जो स्टूडेंट्स का जो रिलेशन रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, अगर हम ऑनलाइन टीचिंग में भी जाते हैं तो वो एक कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो हम लोगों को केयरफुली वॉच नहीं करते हैं, उनको अपना जो काम है वही सिर्फ करना रहता है. जैसे श्रद्धा मैम ने कहा था कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो वहां पर हम एक ये ट्रिक ले सकते हैं कि जैसे अनुपमा मैम ने कहा था कि मैंने क्या करा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि आप एक काम करो, मेरी मिस्टेक्स निकालो, क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट्स का काम है कि टीचर्स की गलतियां निकालना. सो वो यही. और तो यस, आई डू एग्री विथ यू मैम, मुस्कान मैम. मैं ना टीचर कहते हैं, सबकी टीचर्स हैं, वी आर एक्चुअली फैसिलिटेटर्स. अगर हम हमारे सेशन को फैसिलिटेट करना जानते हैं कि कैसे, कितने 20 मिनट तक का सेशन लेने के बाद अगर आप 10 मिनट का गेम खिलवा रहे हो ना, तो आई कैन गिव यू श्योरिटी, आई कैन make everyone assured that yes, they are going to engage with you and they are not going to divert their mind anywhere else. Second, I would like to add on, let me complete please. Let me complete please. I have a good point to speak here. I'm so sorry. What was that point? So आपने स्कूल में देखा होगा बैक बेंचर्स होते हैं बहुत, एकदम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे बैक बेंचर्स एकदम फेमस हैं. तो बैक बेंचर्स के लिए हमारी नजरिए में वो क्या होते हैं, क्लास के जोकर्स होते हैं जो पीछे बैठे होते हैं. नाउ इफ अ जोकर विल थिंक दैट ही इज अ जोकर, सो ही विल स्टार्ट शोइंग दैट यस आई एम अ जोकर, आई शुड प्ले नाउ. तो अब वो क्या करेगा, वो ऐसी कुछ हरकतें करने लग जाता है कि पूरे क्लास का अट्रैक्शन जो है, या बोल सकते हैं अटेंशन जो है, वो पूरा उसकी तरफ चला जाता है. उसी टाइम पे कहाँ गया उस ऑफलाइन क्लास का पूरा एंगेजमेंट, कहाँ गया पूरा अटेंशन, पूरे लेक्चर तो मतलब जीरो हो गया. बच्चे हंस रहे हैं वो बैक बेंचर के ऊपर. तो माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो एक ही स्क्रीन पर एक ही फ्रेम पे हम बच्चों को देख सकते हैं. कभी आपने देखा होगा बच्चों को आदत होती है टिक 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 पेन से करते रहते हैं, राइट?
करते हैं वो पेन से एकदम बिल्कुल पेन हिलाना या हाथों को हिलाना, वो पता है क्यों करते हैं? वो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। अब जब उनके सामने आइट साइड उनकी सराउंडिंग में कोई बैठा ही नहीं होगा तो अट्रैक्ट किसको करेंगे, किसका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे? आइदर दे कैन स्पीक और दे कैन प्लीज गो अहेड। यस, मेरा पॉइंट ये था, लाइक जैसे अनुपमा मैम ने हमें बताया था कि एक वो ट्रिक बताई थी, एंड मैंने उनको इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया था कि मैम थैंक यू, आपने ये ट्रिक बताई। देन बात ये थी कि जब उन्होंने ट्रिक बताई थी तो ये बताई थी तब वो क्लासरूम टीचिंग में थी, जब वो फिजिकल क्लासरूम में थी तब उन्होंने वो अपनी ट्रिक बताई थी। बट शी टोल्ड दैट ट्रिक जब हम ऑनलाइन टीचिंग मतलब कर रहे हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, शी सेड एक पीपीटी बनाओ और उस पीपीटी में वो एरर्स डालो। उन एरर आई डू रिमेंबर दैट। या बच्चों को हम बोलेंगे कि 10 मिस्टेक्स निकालो अपनी, आई मीन मेरी मिस्टेक निकालो, तो उससे ये होगा बच्चे जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले बच्चे ना वो भी देखेंगे। बट अगर हम उनको ये भी बोल देंगे दैट यू विल गेट अ रिवार्ड एंड यू विल बी द विनर ऑफ अ वीक, तो उससे उन लोगों को क्या रहेगा, एक उनके माइंड में आ जाएगा कि अरे हम भी बन सकते हैं। तो वो, और उनकी तो आदत है कि मिस्टेक्स निकालनी है उनको, तो इससे वो क्या करेंगे, पूरा केयरफुली हम ध्यान देंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। और साथ ही ये चीज हमारे लिए भी एक यूजफुल रहेगी कि अगर बच्चे, जैसे हमने 10 मिस्टेक्स उसमें डाल दी, बट हो सकता है हमसे एक ऐसी मिस्टेक भी हुई है जो हमको खुद को भी नहीं पता है, वी आर ऑल्सो द ह्यूमन, मिस्टेक्स तो हो सकती है, तो वो मिस्टेक से भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक से ही। एंड बस यस, एंड वन पॉइंट मेरे पास भी एक पॉइंट ये है कि अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लेसन 1 अगर बच्चे को हम अभी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ है, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है। हम बच्चे को 40 मिनट में कितना समझा सकते हैं, लेकिन बच्चा उसे उस 40 मिनट में उसे पता है कि ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इस 40 मिनट में, तो वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली और बिल्कुल हम ये कह सकते हैं एकदम ऑनेस्टी से साथ बैठेगा और सुनेगा, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्टली समझाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, वर्ड मीनिंग्स दिए जाएंगे, तो बच्चा उसे बहुत ज्यादा केयरफुली सुनेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने ये नहीं सुना या ये मैंने सेशन मिस कर दिया तो मैं चैप्टर ही मिस कर जाऊंगा और फिर मुझे तो बहुत सारे लॉसेस होने वाले। So that's why ma'am, I want to add on one point here. Yeah. Yes, ma'am. Actually, I want to say that कि अगर आप क्लास की बात करते हो, कि जैसे अगर आप ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हो कि हमें एक लिमिटेड टाइम में एक चैप्टर खत्म करना है, तो बच्चे उससे बहुत ही जल्दी जल्दी बैठेंगे, एक मतलब एक टेंशन के साथ बैठेंगे या एक प्रेशर उनके ऊपर होगा कि नहीं, अगर हमने नहीं किया तो हमारा कहीं चैप्टर मिस ना हो जाए। बट मैम, मैंने एक जो चीज एक्सपीरियंस की है अपनी टीचिंग में कि बच्चे जो होते हैं, मतलब इतना सॉफ्ट माइंड होता है उनका उस टाइम पे, अगर हम बच्चों की बात करें जो मतलब बिलो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट उसके लिए मैम हम लोग बच्चों को पीडीएफ्स, उसके अलावा काफी वीडियोस, उसके मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसके अदर्स में हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करें ताकि बच्चा उसे इजीली समझ सके। ओके, लेट मी प्लीज, मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग की, चलिए अगर आप वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, अगर आप पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ये चीज सिर्फ तब तक हमारे लिए बेनिफिशियल है जब तक बच्चा उन चीजों को देखेगा, तब तक। अगर वो देखेगा ही नहीं या उन्हें सीखेगा ही नहीं तो आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आप सिखा पाएंगे उस बच्चे को। यस मैम, आई वुड लाइक टू से, और मैं एक चीज और बोलना, प्लीज लेट मी फिनिश। मैम, एक्चुअली मैं एक और चीज कि मैंने खुद अपनी क्लास में एक चीज ऑब्जर्व करी है कि एक बच्ची थी हमारी क्लास में जो इतनी ज्यादा नोटोरियस कि उसे कोई भी हम लोग उस पर कुछ भी कर लें, किसी उसे फन तरीके से सिखाएं या कुछ भी करें, वो नहीं, इतनी ज्यादा नोटोरियस थी कि उसे कुछ ना कुछ करना ही है। पूरी क्लास अगर हम शांत कर दे फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि उसे नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, भले हम कुछ भी कर लें, चाहे उसके सामने हम फन गेमिंग करें या कुछ भी करें। तो उसकी मदर जो थी वो इतनी ज्यादा टेंस्ड रहती थी जब भी पीटीएम होती थी, तो यही कि मैम प्लीज कुछ भी कीजिए, आप इसे मारिए पीटिए, लेकिन कुछ भी कीजिए, लेकिन प्लीज आप इसे सिखा दीजिए कुछ ना कुछ, या इसे थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखा दीजिए। तो मैम, अगर ऑनलाइन टीचिंग जब हम उस जगह पे फिजिकली मतलब प्रेजेंट हैं, एक बच्ची को हम समझा रहे हैं पास में बैठ के, ऑनलाइन टीचिंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस बच्ची को अलग से बैठ के उसकी थोड़ी बहुत काउंसलिंग कर पाए,
क्योंकि हर एक फैमिली का अलग एनवायरनमेंट होता है, हमें नहीं पता उसके पेरेंट्स कैसे हैं, हमें नहीं पता उनका नेचर कैसा है, वो किस तरीके से बच्चे को डील करते हैं, या वो बच्चा किस तरीके के बिहेवियर में या किस तरीके की चीजों में वो ग्रो कर रहा है। तो बच्चों का भी एक जो सेट ऑफ माइंड होता है वो इतना इस तरीके से ग्रो करता है। सॉरी मैम, I want to cut on this point that I totally disagree with you that कि फिजिकल लर्निंग ही या अगर हम बच्चे के सामने होंगे तभी हम उसको समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्या आप बच्चे को एप्पल दिखाने के लिए क्या अपने घर से एप्पल लेके गए थे? नहीं, हम अपने घर से एप्पल नहीं लेके गए थे, हमने उसे पोस्टर ही दिखाया था। इन द सेम मैनर अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ तो मेरे पास इतना ज्यादा कंटेंट होता है, इतना ज्यादा कंटेंट होता है कि मैं कोई सी भी वेबसाइट पे ओपन करके मैं उसको एप्पल दिखा सकती हूँ, मैं एप्पल कैसे लगता है मैं उसको वो भी दिखा सकती हूँ। तो आई टोटली डिसएग्री विद दैट। एंड हम सभी एक सेक्शन पे बस फोकस कर रहे हैं, हम क्योंकि हम लोग यहाँ पूरे ऑल ओवर 10 लाख टीचर्स की वॉइस हैं, तो मैं उन टीचर्स की भी प्लीज बात कीजिए जो विलेज में बैठी हुई हैं, जो 200 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, या फिर बच्चे उनके पास जाते हैं। So please focus on that also. And I would like to put on one data. Am I audible to everyone? Yes. Yeah. I would like to put on the data here. I have a data which I collected here. As even as the center pushes for universal education through various schemes, and around 13,000 villages are yet to get a school. School नहीं है मैडम, 13,000 स्कूलों में। आप एक बच्चे की बात कर सकते हो, वो नोटोरियस है। 13,000 ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल साइलेंट हैं, जिनको नहीं पता है कि कैसे बात करनी है, क्या करना है। उनको स्कूल चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको सिर्फ लर्निंग चाहिए। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो हम तक नहीं आ सकते, जाएं कैसे उनके पास? तो मुझे लगता है ये एक वे है। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ नंबर, मिजोरम इज द ओनली स्टेट वेयर एवरी विलेज हैज स्कूल। सिर्फ एक ऐसी स्टेट है पूरे इंडिया में जहाँ पे मिजोरम है जिसके पास सारे स्कूल्स हैं। क्या होगा बाकी पूरे देश का? ओनली मेघालय हैज 41 विलेजेस विद नो स्कूल्स। मेघालय ऐसा है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे 41 विलेजेस ऐसे हैं जिनमें स्कूल्स ही नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस विदाउट स्कूल्स आर ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे स्कूल ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट नंबर देखें तो हम उत्तर प्रदेश का है, वहाँ पे स्कूल्स ही नहीं है। मैम, मैं कैसे रीच आउट करूँ उन बच्चों के लिए? मैं देखती हूँ मेरे पास बच्चे बैठे होते हैं, पढ़ रहे हैं, मैं उनको बता रही होती हूँ बिलो पॉवर्टी लाइन वाले स्टूडेंट्स के बारे में, मैं उनको बता रही होती हूँ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। अरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे पास बैठे हुए बच्चे का मैं क्या बढ़ाऊँ? मैं जो गाँव में बैठा हुआ बच्चा जिसको पढ़ाई भी नहीं मिल रही। सो आई वुड लाइक कि एवरीवन की वो जो टीचर्स जो बेचारी गाँव में बैठी हुई हैं, जो जिनकी आवाज बन के आज हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर इट, प्लीज। थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे फायदे, लाइक अभी जैसा कि गुरप्रीत ने मैम ने बताया कि ए फॉर मतलब लाइक बच्चे को हम एप्पल दिखाते हैं, तो हम सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है और ए फॉर एरो भी होता है। हम ये सारी चीजें बच्चे को ऑनलाइन दिखा सकते हैं। लाइक गुरप्रीत मैम ने बोला हम स्कूल एप्पल लेके नहीं गए थे कि ये एप्पल है, लेकिन हाँ हम लोग ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू बच्चे को ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। वो ए से एरोप्लेन भी बताएगा, एरो भी बताएगा और एप्पल भी बताएगा, वो तीन चीजें guys, Muskan, yeah, last thoughts I will be taking one points from each and everyone, and then we will close the debate. It was a wonderful session. We will start with Muskan ma'am. Yes. Ma'am, one thing I want to tell you that बहुत लोगों ने ऐसा ये इशू बनाया हुआ है कि ऑनलाइन टीचिंग नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज कि एक वो मोबाइल पे बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं इस वजह से। तो मोबाइल पर भी हम ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हम स्कूल में भी नहीं कर पाते। लाइक अगर हमारे आसपास ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रॉप्स नहीं है, स्कूल के जो हमारे प्रॉप्स रहते हैं वो नहीं है और हम घर पे नहीं बना सकते। आई हैव मेड सम प्रॉप्स, आई वांट टू शो यू। See, if I like, if I am going for the fractions, if I want to teach fractions, so I have made one pizza. And after showing the fractions, I have made this. Is it visible? Yeah, visible. A bit more camera ke paas aaiye. Yes, ma'am. See. Wow. Yeah. And see, ma'am, one more thing. For angles, I have made the clock. For the angles, for explaining angles. Wow. Good. और so ये आपने खुद से बनाया? Yes, ma'am. For explaining fractions and angles to my kids. Wow.
Everyone, can we give her a big clap hand, please? First of all, that's really good. Thank you so much. So nice. Ma'am, see watermelon. एक मिनट देखा नहीं, अब चली गई दोबारा से. See. Wow. And 4 parts of watermelon. Beautiful, beautiful. This is the angles. Reflex angle. Very nice, very this is nice. a complete angle. बहुत अच्छा. Great, Muskan ma'am. I'm really highly impressed. It's really nice. Thank you so now much. it's turn for you're most welcome. Monica ma'am, your last thought. यस मैम. मैम लाइक मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. हमने लाइक छोटे बच्चों के लिए ऐसी बुक्स बनाई हुई है जिसमें हम बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग से अभी लाइक ऐसा दिखाते हैं कि लाइक ये जनरल नॉलेज है जीके की, जिसे हम बुक कहते हैं, जिसे बच्चों को जो बुक्स के थ्रू दिखाया जाता है. इसमें हमने सर्टिफिकेट्स भी एक लाइक मिला है अभी स्कूल की तरफ से. और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने सब बच्चों के लिए कलर्स, शेप्स और डेज, मंथ नेम, ये सब कुछ इसमें हमने बनाया हुआ है. लाइक देखिए इसमें हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए कट करके लगाए हुए हैं, आप जैसा देख पा रहे हैं मैम, ताकि बच्चों के लिए बहुत विजिबल होता है और बच्चे इसे बहुत ही अच्छे से देखते हैं. ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं. हम इसे बच्चों को जूम आउट करके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मतलब इनके नेम्स बताकर वो बच्चों को दिखाते हैं, तो वो बच्चे और अच्छे से देखते हैं. Very nice. ये देखिए मैम, Very nice, very nice. ट्रांसपोर्टिंग है. तो मैम मैं यही कहना चाहूंगी अभी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो चुकी है. और मेरे हिसाब से तो अभी जो लाइक थोड़ा सा ये कोविड-19 और कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी हम बच्चों को सेफ रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है. बच्चे सेफ रहें, हेल्दी रहें, तो उसके लिए तो अभी हमें ये ऑनलाइन क्लासेस तो मैम लेनी ही पड़ेगी. और इससे मैम हम बच्चों से अटैच रहेंगे कहीं हद तक. Yes, ma'am. Yeah, am I audible to everyone? Yes. Yes, ma'am. Actually, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी that there is much difference between teaching and learning. मतलब जैसे कि अभी काफी टीचर्स ने अपने कुछ दिखाए हैं prompts वगैरह कि बच्चों को इसके थ्रू हम सिखा सकते हैं, but that ये तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक वो बच्चा सीखना ना चाहे. मतलब मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस की है अपने टीचिंग करियर में कि हर एक टीचर एक जैसा नहीं होता. कई ऐसे टीचर होते हैं जो सिर्फ ड्यूटी कंप्लीट करते हैं, दैट आई एम डूइंग आवर ड्यूटी, दैट आई एम डूइंग माय ड्यूटी हियर, आई एम टीचिंग हियर. और कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिन्हें एक्चुअल उन्हें मन होता है कि हाँ ये बच्चा सीखे. तो मैं अगर ऑफलाइन टीचिंग की बात करें, अगर ऑनलाइन टीचिंग की आप बात करें, अगर आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी एक ड्यूटी करेंगे. आप इतना प्रेशर नहीं लेंगे उसका कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, आपको कोई इतना लेना देना नहीं होगा. चीजें बोलने की अलग होती हैं और चीजें एक्चुअल में जो होती हैं वो कुछ अलग ही होती हैं. तो मैंने जो चीज एक्सपीरियंस करी है अपने टीचिंग करियर में वो यही है कि 100 में से फ्यू टीचर्स ही कुछ ऐसे होंगे जो मतलब जो एक तरीके से बच्चे को फोर्स करते हैं कि तुम्हें सीखना है, यू हैव टू लर्न इट. मतलब उस चीज को वो एक ड्यूटी समझ के नहीं, उस चीज को मैं एक टीचर हूँ, सो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चा सीखे. तो वो एक जो फैक्ट है वो शायद कहीं पे मिसिंग हो रहा है इस पूरे सेशन में. मैं जो स्टार्टिंग से चीज बोलना चाह रही थी वो यही था. वो कंटेंट पे या वो एप्पल की जो बात थी कि हम एप्पल दिखा सकते हैं, या दैट इज ऑब्वियस कि आप अगर ऑनलाइन टीचिंग में हैं तो वो एप्पल आप कहीं से भी सर्च आउट करके कुछ भी सर्च आउट करके आप दिखा सकते हैं. पर सिर्फ आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो बच्चा कितना देखना चाहता है उस चीज को, ये आप उस चीज को इम्पोज नहीं कर सकते या उस चीज पे एम्फसाइज नहीं कर सकते. वो चीज तभी आएगी जब आपका उससे इंटरेक्शन बढ़ेगा. और इंटरेक्शन ऑनलाइन में आप 24 घंटे नहीं कर सकते या 6 घंटे नहीं कर सकते. उस इंटरेक्शन में आपको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा एंड दैट इज द रियलिटी.
I'm not talking about that fancy thinking that teachers अगर बात करें ऑनलाइन टीचिंग की कि हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, हम कुछ भी ऑब्वियसली आप प्रोवाइड करेंगे बिकॉज आपको अपनी टीचिंग इफेक्टिव बनानी है, बच्चों को लर्न कराना है, आप सब कुछ करेंगे वो चीजें, लेकिन वो चीजें कितनी इफेक्टिव हो रही है, दैट्स द क्वेश्चन। एंड वो चीज को मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग अगर अच्छी है तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, अगर हम बात करें इस कोविड टाइम के लिए कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है कि दिस इज अवर कंपल्शन कि वी कांट टेक दैट स्कूल, वी कांट टेक दैट क्लासेस इन अवर स्कूल्स। तो मैं ये चीज बोलूंगी कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए ऑनलाइन टीचिंग इज वेरी गुड, बट अगर हम बात करें फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अवर लाइफ टाइम, दैट इज लिटरली नॉट गुड बिकॉज you only show your projects, you only show your PDF, but you can't grow that mental level। मतलब जो एक बच्चा हर एक टीचर से कनेक्ट होके, हर एक बच्चे से कनेक्ट होके उस एक्सपीरियंस को फेस करके जो वो सीखता है, वो शायद एक घर पे बिठा के एक बच्चे को आप नहीं सिखा सकते। That is my point. Absolutely. Thank you so much. Last but Gurpreet, sum it up in just 1 minute, and then Shraddha 1 minute. Yes, Gurpreet ma'am. Yeah. मैम अगर इफेक्टिवनेस की बात की जाए कि Gurpreet, I have a question for you. You have been very vocal about these things. What about there are kids. There is a audience from our YouTube community that they are asking that बच्चे 8-8 घंटे मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठते हैं without any friends interaction, without any social things happening. वो किसी से and जब बच्चे स्कूल जाते हैं, one of the major thing they learn apart from teaching, apart from anything, is that social interaction. लोगों से बात क्या करनी है, और वही स्कूल के बाद काम आता है। लेकिन वो जब आप टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, नो डाउट इन इट, बट वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो रही है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? वो बाद में हम कैसे कंपनसेट करेंगे? तो अगर टीचर मिस आउट हो रहे हैं तो आई वुड से कि टीचर्स को सबसे पहले हमें इस चीज में स्किल करना पड़ेगा कि हाउ टू फैसिलिटेट। कोई गलती नहीं है, सी टीचर्स डोंट हैव एन ऑप्शन। वो बेचारे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बच्चे लाके थोड़ी बिठा देंगे, पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर बच्चों को सोशल बनने का कोई आइडिया है आपके पास, हाउ टू कंपनसेट दिस? यस मैम, अगर इसे कंपनसेट करना है ना, सबसे पहले मैं बता सकती हूँ कि सबसे पहले तो हमें अगर बात करें हम कि अगर बच्चा सोशल नहीं हो पा रहा है या बच्चा फ्रेंडली नेचर जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, सो मैं बता दूं मेरे घर में एक छोटा सा एक बच्चा है, मेरी बुआ का बेटा, एंड वो बचपन से ही आज मोबाइल चला है, छोटा सा, इज जस्ट ऑफ 3 years। वो इंस्टाग्राम पे बाकायदा लोगों से चैट करता है, बाकायदा बाहर जाता है, उसके आसपास उसकी सराउंडिंग में लोग रहते हैं जहाँ पे उसकी मम्मा उसके साथ होती हैं, वो इंटरेक्ट करती है। अगर कंपनसेशन की अगर ऐसी बात करनी है बच्चों को कि आपको सोशल बनाना है, तो बच्चा घर में रह के भी सोशल बनता है अगर वो चाहे तो। I don't think so. गुरप्रीत 3 साल का बच्चा, मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री, आपके सारे पॉइंट्स के साथ मैं एग्री करती हूँ, बट यहाँ कहीं ना कहीं मुझे और थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि इंस्टाग्राम जैसे मैं आपसे मिलके जितना बात हो सकता है, वो मेरी आपकी तो स्क्रीन नहीं हो सकता, वो कनेक्शन नहीं आ सकता, और आएगा भी तो इट्स बिट डिफिकल्ट हमारे लिए। अगर इट इज बिट डिफिकल्ट, सो फॉर द किड्स इट माइट बी मोर डिफिकल्ट। Yes ma'am, and we are also talking about about I think I don't know the exact numbers, it may cross 50 million, that those number of kids are right now at home. Ma'am, so I want to add one more point here. Yes ma'am, please go ahead, add your point. मैम एक्चुअली मैं बोलने वाली थी, क्या देखो इसमें ना टीचर्स की कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास आइडिया है? मैं एक आपको यस मैम, लेट मी टेल यू, एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं आपको कि जब स्कूल में एक 50+ स्टूडेंट से क्लास भरी होती है, टीचर सामने बैठ के पढ़ाता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो टीचर पसंद नहीं होती है, या वो टीचर का जो पार्टिसिपेशन होता है उस दौरान, उस 1 hour के सेशन में, तब भी बच्चों की प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं, प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट जाती है कि नहीं हमको वो टीचर अच्छा नहीं लगता है, प्लीज उनको हटाओ। तो क्या हम वहाँ पे कोई कंपनसेशन लाते हैं? नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ मैम, इसके लिए मैं आपको लेट मी कंप्लीट।
अगर if you really want कि that teacher is not at all at wrong scenario, but yes, what you can do, मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग में ये चीज आनी चाहिए, that is teachers observation form. टीचर ऑब्जर्वेशन फॉर्म होना चाहिए. अगर वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कैन सिट ऑन द सेशन व्हिच टीचर्स आर टेकिंग, तो वहां पे वो क्या कर सकता है, एक टीचर्स ऑब्जर्वेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकता है कि हाउ दैट टीचर इज गिविंग टीचिंग, हाउ शी इज फैसिलिटेटिंग द क्लास. नाउ अगर उसके ऊपर इज नॉट दैट, नहीं गुरप्रीत आप क्वेश्चन से भटक गई, ये मैं सबकी तरफ से पूछ रही हूँ. क्वेश्चन ये था, ये टीचर्स की बात है ही नहीं, फॉरगेट अबाउट टीचर्स. क्वेश्चन ये था, एक बच्चा जो 8-8 घंटे बैठ के, चाहे 8 घंटे बैठे ना, खड़े होके कभी बैठ के एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर सुन रहा है. एक टीचर्स आर गिविंग देयर बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर सुन रहा है, टीचर भी बहुत अच्छी है, सब मान लिया. बट द थिंग इज, वो बच्चा सोशली जो इंटरेक्शन होता था अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी लड़ लिए, कभी ऐसे ही अपने में बात कर लिया, कभी टीचर को ही कुछ बोल दिया, socially they develop over the period of time. कंपनसेट कर सकते हैं अगर टीचर बच्चों के साथ नॉट एज अ टीचर बट एज अ फ्रेंड, अगर वो उस ऑनलाइन सेशन में रहेगी ना, तो वो बहुत अच्छे से सेशन को फैसिलिटेट कर सकती है. या बच्चा ना चाहते हुए भी अगर उस सेशन को एंजॉय कर रहा है विद स्पीकिंग. आपके एक सेशन में आप ही ने मुझे ये बताया था, पूरे टीचर्स को इससे एनलाइटन किया था कि यूज द चैट बॉक्स को यूज करो, योर स्टूडेंट विल नॉट गेट बोर्ड. तो वो चैट बॉक्स उनसे यूज करवाओ. बच्चों को अगर आपको सच में बोर नहीं फील करवाना है और स्टिल दे आर कंप्लेनिंग अबाउट दैट, पॉइंट आउट दैट स्टूडेंट्स. इसमें मैं आपको एक चीज मेरे माइंड में बहुत पहले आई थी व्हेन आई वाज टेकिंग I will go to Sanchika ma'am because she has some Sanchika ma'am. Okay. मैम एक्चुअली मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज में एक न्यूज पढ़ी थी. उसमें था कि अभी कुछ टाइम पहले, 1 मंथ पहले, जर्मनी ने कुछ दिनों के लिए, आई थिंक 1 और 2 वीक्स के लिए लॉकडाउन को ओपन किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे बाहर आ सके, क्योंकि बच्चों का मेंटल लेवल थोड़ा सा ग्रो हो सके. उन्होंने इतने, जबकि वो एक अच्छी कंट्री की अगर हम बात करें तो दैट इज रियली गुड. तो अगर हम एक मेंटल लेवल की बात करें या मेंटल ग्रोथ की बात करें, तो वो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है. मैम बोल रही हैं कि जैसे कि गुरप्रीत मैम बोल रही हैं कि हम उसके लिए भी कंपेंसेट कर सकते हैं चीजों को, बट आप उस फैमिलीज की काफी सारी ऐसी, मतलब हाई प्रोफाइल फैमिलीज भी हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, जिनका जो घर का जो बैकग्राउंड है या जिनका जो घर का एक जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है. कई मतलब हस्बैंड वाइफ इतनी ज्यादा फाइट करते हैं, घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या कई में कुछ गलत हैबिट्स होती हैं, तो वो बच्चे उस चीज को भी फेस करते हैं. उस चीज में अगर आप अपने ऑनलाइन सेशंस, स्कूल एक ऐसी जगह है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग गलत है, ऑनलाइन टीचिंग सही है, लेकिन इस चीज को एक लाइफ टाइम के लिए बाउंड कर देना कि दैट इज रियली गुड एंड ऑफलाइन टीचिंग इज नॉट गुड. तो उस जगह पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर उस माहौल में वो बच्चा, उस चीज को आप सब कुछ अवेलेबल करा दीजिए ऑनलाइन, उसे पीडीएफ दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, लेकिन उस बच्चे का मेंटल लेवल जो शायद घर से अलग होके, उस माहौल से अलग होके, जो वो 6 घंटे के लिए स्कूल में आता है, अलग अलग बच्चों के साथ हंसता है, बोलता है, एक चीजें समझता है, जो उसका मेंटल लेवल घर से शायद कुछ और होके आया था और वहां आके उसका कुछ और ही हो जाता है. तो वो चीज आप कैसे सेटअप कर पाएंगे ऑनलाइन टीचिंग में? दैट्स द क्वेश्चन and that's the thing I want to say. I will tell a personal story to all the teachers. When I was teaching, तो एक बच्चा सुबह जैसे ही आया, तो I don't know for what reason मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और मैंने बोला कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ क्या है. तो बार मैंने ऑलमोस्ट आधा घंटा पूछा, फिर he said he bursted out, और वो इतना रोया कि मेरी मम्मी और दादी में लड़ाई होती है और मुझे इससे पेन होता है. तो एजुकेशन दे सकते हैं, सब कुछ दे देंगे, बट वो जो एक टच पर्सनल होता है टीचर का, वो मिसिंग रहेगा ऑनलाइन एजुकेशन में. वो नहीं कवर करता है. मैं भी बोली, मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स बोले थे उनमें सब में मेरी कहने का मतलब ही वही था कि जो टीचर है, जो इतना पास आके सोशली कम्युनिकेट करता है, उस बच्चे से जितना कम्युनिकेट करता है उतना ऑनलाइन नहीं हो सकता. ये मेरा यहाँ पे मैं डेटा के साथ बात करना चाहूंगी. एक मिनट मैम, आप बोलिए. सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम. अभी फिलहाल 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन
उनके पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया कि मोनिका मैम प्लीज आप इनसे बात कर लीजिए, उतने में ही खुश हो जाएंगे और एक क्लास अटेंड कर लेंगे। एक मिनट, बट मैम बच्चे कॉल कर रहे हैं, हम उनसे बात भी कर रहे हैं और बच्चे हमारा कहना सुन रहे हैं सिर्फ मैम। ये हुआ क्यों? आप ये जानिए ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि आप इतने दिनों से उनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग है उस बच्चे के साथ। अगर आप बच्चे का ये सोचो कि वो हमेशा ही ऑनलाइन ही पढ़ेगा तो उसका कम्युनिकेशन आपके साथ इतना स्ट्रांग नहीं होगा। मैं भी 12-13 सालों से पढ़ा रही हूँ, कभी भी सुन रहा है। हाँ एक मिनट सुनिए, मैं भी 12-13 सालों से पढ़ा रही हूँ और मेरे बच्चे कॉलेज में चले गए और वो अभी भी मुझे रात को 10 बजे भी फोन लगा के बात करते हैं, तो मैं सारी बातें करती हूँ, उनकी सारी बातें जो नॉर्मल वो पेरेंट्स। सॉरी टू इंटरप्ट श्रद्धा मैम, आई वांट टू से यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास हमारी काम आ रही है, बच्चे हमें फोन पे कांटेक्ट कर रही है क्वेश्चन पीरियड के लिए। Right now, I will interrupt in between a bit. Right now, the situation is like this. हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। This is the Sorry to interrupt everyone. मैं डेटा के साथ बात करना चाहूंगी। It's just a theoretical thing which we are speaking out. अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूं, you all can Google out and चेक कर सकते हो कि वहां पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट सर्वे कंडक्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर्स 90% of them reported that teaching online helps them to stay more connected with the students and also give them ability to have better understanding about every student. बच्चा बोलता है वहाँ पे। Sorry to interrupt you, Gurpreet. I want to say something. So it's a practical data. Theoretical things can be different, can go in different manner. But अगर हम डेटा की बात करें, जिन्होंने डेटा दिया है 90% का, वैसे तो नहीं लिखा होगा. So please go for it. Yes, thank you for sharing the data. It's really coming out very, very, very nicely. But on the other hand, again, I really want to thank you from the very core of my heart. But on the other hand, I doubt कितने वो लोग गांव में गए हैं और कितने वो लोग टायर बी टायर सी में गए हैं. So I doubt that. You are valid. You have kept a valid point. But yes, ma'am. जैसे बोलते हैं ना, coins के दो side होते हैं. Let me complete, please. Yes. जैसे coin के दो side होते हैं ना, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर हार गए होते उस वक्त, यार मेरे तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस दिस इज द टाइम वी कैन मॉडर्नाइज आवर एजुकेशन सिस्टम. We have, Gurpreet, a big clap to all the teachers. We actually have modernized. It's just that कुछ भी हम लोग अच्छा करें, थोड़ा सा नुक्स एंड कॉर्नर्स हो जाते हैं. और ये हर सिस्टम, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं मैम, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स. I want to say, Gurpreet ma'am, just give us a chance. Anupama ma'am, I want to say something. Yeah, last but not the least. Yes. ऑनलाइन जो मेरा ये कहना है कि ऑफलाइन में जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बढ़ी हुई होती है. वो बच्चों के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. उनका एक रहता है कि ना, जो उसकी क्लास है उसके सारे बच्चे अच्छे बिहेव करे, वेल बिहेव करे, उनकी कंप्लेंट्स है ना जानी नहीं चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए. और ऑनलाइन में जो टीचर्स है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. वो डायरेक्ट बोल देंगे कि आप, मैंने तो पढ़ाया था, आपके बच्चे ने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूँ, देख लो हमारा सेशन चला था, आपका बच्चा ये कर रहा था, आपके बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया, आपके बच्चे ने वीडियो ऑफ कर दिया. Actually, one thing I want to add. तो ये सारी one thing I want to say. हाँ, yes ma'am. मैम एक्चुअली मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब भी हम ऑनलाइन के लिए जाते हैं या ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये चीज उन लोगों को बतानी चाहिए कि अभी जो माहौल, अभी जो सिचुएशन चल रही है, वो जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर से एक दूसरे सामने इंटरेक्ट करेंगे स्कूल्स में. तो लास्ट में पॉइंट ये आता है कि कम्युनिकेशन ही हमारा है. जब तक हम कम्युनिकेट अच्छे से बच्चे से सामने बैठ के नहीं करेंगे ना, वो वाली चीज आएगी ही नहीं. जो बच्चे मेरे सब टीचर्स के लिए एक पॉइंट है, जैसा कि अनुपमा मैम ने किया, अभी कहा था कि
अपग्रेड कीजिए अपने आप को, सिर्फ अपग्रेड कर रहे That's a great thing, ma'am. I agree with that. ठीक है, आप अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी कर रहे हैं। आप अपग्रेड कर रहे हो, पर आप अपने जो अपने लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे आप किस तरीके से बात करते हो, और उनकी जो आपकी जो कम्युनिकेशन उनके साथ है, और वैसा ही आपका कम्युनिकेशन रहता है आपके बच्चों के साथ, थोड़ा बहुत है कि नॉट लाइक दैट, थोड़ा बहुत, पर इसी कारण से तो वो आपको फोन लगाते हैं, इसी कारण से तो वो आपकी बात सुन रहे हैं। अभी अगर आप ये सोचो, एक छोटा बच्चा फर्स्ट क्लास से ही ऑनलाइन पे पढ़ाई कर रहा है, श्रद्धा मैम, I want to say one thing. लाइक अनुपमा मैम ने जब हमारा सेशन लिया था हम टीचर्स के लिए, तब उन्होंने एक चीज ये कही थी कि जब भी आप पढ़ाते हैं तो थ्योरी के लिए आप 10 मिनट दीजिए, इंटरेक्शन के लिए भी आप 10 मिनट दीजिए, उसके बाद आप बच्चों से के लिए उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, कि ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि हम बहुत ज्यादा दूर हैं। और अभी तो leave now. It has been a great session. The conclusion that I am giving here is that teachers have already upgraded. There are some looks and corners. It has been an absolutely delightful talk to all of you. The winner will be announced soon. But बहुत अच्छा session था. So for everyone, a big clap. आपने बहुत अच्छे से participate किया. Oh, I love you all, and I love the fact that you were so energetic, and everybody was absolutely phenomenal, and I loved you for the fact that you guys have adopted to the change so easily. You made it look so easy, but